المعصومین المظلومین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں، بالخصوص حضرت امام زمان کی خدمت میں، آج کے اس عظیم دن جشن ولادت بشہادت حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض ہے، اور اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے آج اس خوبصورت اور پرنور محفل میں شرکت کی سعادت بخشی۔ علماء کی موجودگی میں بالکل مناسب نہیں ہے چند جسٹ اپنے اس پروگرام کے اندر، اس اجر کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کے لیے یہاں پر کھڑے ہونے کی جسارت کی ہے۔ چند گزارشات، جس طرح قبلہ آغا کاظم عباس بہت خوبصورت انداز میں بتا رہے تھے تاریخ کے حوالے سے، اور اس سے پہلے راج صاحب کی گفتگو کے بعد بالکل مناسب نہیں، اور آگے بھی علماء کرام موجود ہیں۔ چند گزارشات، واقعاً برادران عزیز سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہیں، ان کی اگر زندگی کو پڑھتے ہیں، ان کو زندگی کے جب ہم جائزہ لیتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، سیرت اہل بیت علیہ السلام میں دیکھتے ہیں، اور بالخصوص حضرت امام زمان کے حوالے سے جب کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے عظمت کے اندازہ ہوتا ہے۔ بالخصوص میں ایک عالم دین سے سن رہا تھا، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح لیلۃ القدر کو خداوند متعال نے ایک عظمت عطا کی اور لیلۃ القدر کو کئی مہینوں سے افضل قرار دیا، اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو تقریباً 83 سال ایک طرف اور لیلۃ القدر کی ایک رات ایک طرف۔ وہ رات کیوں اتنی قیمتی رات ہے، کیوں اتنی عظمت اور باشرف رات ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اس رات کو، اس دن کو قرآن نزول ہوا، قرآن کو خداوند متعال نے نازل فرمایا۔ تو پس جس رات کو میں ایک قرآن کی نزول پر وہ 83 سالوں سے زیادہ افضل ہے، تو آج جس سیدہ کے جشن ولادت بشہادت منانے کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں، کہ جس سے خداوند متعال نے 11 قرآن اتارے ہیں، تو اب اندازہ کریں کہ 11 اہل بیت یعنی 11 قرآن، تو یہ کتنی فضیلت اور کتنی عظمت کی مالکہ ہے۔ پس برادران عزیز، ہمیں چاہیے کہ ہم سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جس انداز سے ولایت کی دفاع کی، جس طرح آغا کاظم فرما رہے تھے کہ جنہوں نے اس عصر میں، اس زمانے میں حضرت سیدہ کو سمجھا اور اس کی سیرت پر عمل کیا، تو کہیں پر وہ سید حسن نصر اللہ کی شکل میں نظر آئے، کہیں پر امام خمینی، کہیں پر حاج قاسم سلیمانی، کہیں پر آغا نمر، تو کہیں پر زکزکی، اور پاکستان کی سرزمین پر جب ہم دیکھیں کہ اس سرزمین پر کس نے ولایت کی دفاع کی، تو ہمیں شہید مظلوم علامہ سید عارف حسین الحسینی کی شکل میں نظر آتے ہیں، کہ جنہوں نے پاکستان کی سرزمین پر ولایت اور اپنے مکتب کے کتنے خوبصورت انداز میں ترجمانی کی، نہ صرف ترجمانی کی بلکہ اس ولایت کے دفاع کرتے ہوئے اپنے خون کا خراج عطا کیا۔ اور الحمدللہ میں اور آپ کو خدا نے یہ سعادت بخشی ہے کہ میں اور آپ اس عظیم قائد کے پیرو ہیں، مانوی فرزند ہیں، اور ہم اس مکتب حسینی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس نے پاکستان کی سرزمین پر سیدہ سلام اللہ علیہا کے ایک سچے بیٹے ہونے کے ناطے وہ کارنامے سر انجام دیے، بالخصوص اپنے زمانے کے فرعونوں کو یوں للکارا۔ امریکہ، اسرائیل سمیت جتنے بھی عالمی طاقتی وہ استعماری طاقتیں ہیں، ان کے راستے کے اندر ایک رکاوٹ بن کر پاکستان کی سرزمین میں بالخصوص تشیع کو وہ مقام عطا کی کہ وہ بکھری ہوئی تشیع، وہ جو بالکل ولایت سے آشنا نہیں تھی، خط امام خمینی کے بارے میں نہیں جانتی تھی، یہ وہ شہید حسینی ہے کہ جس نے ہمیں مکتب امام خمینی سے جوڑا، عالم نہضت امام زمان کے ساتھ منسلک کیا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی آج پیروے شہید حسینی کے ہونے کے ناطے، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی کے
पाकिज़ा फरामीन और पाकिज़ा ख़त पर चलते हुए आज हम पर वाजिब है, लाजिम है कि हम आज के इस दिन के मुनासिबत से सैयदा कौनैन से तजदीद अहद करके चले जाएं कि हमने अपने वजूद के अंदर विलायत का अहिया करना है, अपने मुआशरे के अंदर विलायत का अहिया करना है। और जब भी किसी भी वक्त कोई भी यजीद और फिरौन अपने ज़माने के हुसैन और उनके वली के खिलाफ बात करे, हम उनके सामने खड़े हो जाएं। याद रखना, अगर आज हम वाक़ईन चाहते हैं कि हम इस विलायत का दिफा करें तो खुदा की कसम आज विलायत का दिफा करने वालों के लिए वाजिब है कि वो अपने रहबर सैयद अली खामेनी की अतात में और उनकी दिफा करें। ये हजरत सैयदा का वो सच्चा बेटा है, ये इमाम ज़मा का वो सच्चा सिपाही है कि जो इस असर के अंदर दुनिया के तमाम शैतानों से, तमाम यजीदों से, तमाम फिरौनों से लड़ बैठे हैं। अगर आप देखें दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइड हुई है, एक इलाही ब्लॉक है और एक शैतानी ब्लॉक है। इलाही ब्लॉक की क़ियादत यानी जो बाइडन कर रहे हैं, उनके हवाली ये अरब के खाइन हुक्मरान और बदकार शहजादे कर रहे हैं। और एक तरफ अगर अलम हक की बात करें, इलाही ताकतों की बात करें तो सैयद अली खामेनी है जो तन्हा इन शैतानी ताकतों के सामने खड़े हैं और इस्लाम की हकीकी और सच्चे मानों में नुमाइंदगी कर रहे हैं। लिहाजा बस इख्तिसार के साथ मैं ये 10 बस्ता गुजारिश करूँगा, यहाँ बाशऊर लोगों की महफिल है, उलमा की महफिल है, बिलखुसूस जवानों की महफिल है। आज अगर हम इस विलायत का दिफा करना चाहते हैं, सैयदा को राजी करना चाहते हैं, सैयदा का बेटा जिसने तमाम अनबिया, औलिया, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के इन कुर्बानियों को हकीकी शक्ल में अदल इलाही के क़याम के ज़रिए से नाफिज करने वाला है, अगर हम चाहते हैं कि उसकी नुसरत करें, उनकी ज़हूर के लिए ज़मीन साजी करें, तो बस हम पर वाजिब है कि हम अमली तौर पर विलायत का दिफा करें, अपने वजूद और अपने किरदार के जरिए से सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के इस अजीम बेटे के आलमगीर इनकलाब के लिए ज़मीन साजी करें। ब्रदरान अजीज, हम एक बहाना करते हैं कि लोग नहीं सुनते, घर वाले नहीं सुनते, महल्ले वाले नहीं सुनते, तो बस आज तजदीद अहद करें, सब नहीं सुनते, लेकिन हमें अपने वजूद के अंदर इन पाकीज़ा सिफात को पैदा करना होगा। हमें अपने नज़रों को इमाम ज़मा के लिए आमादा करना होगा, हमें अपने क़ल्ब को इमाम ज़मा के लिए राज़ी करना होगा, हमें अपने जिस्म में मौजूद हर एज़ा को इमाम की अतात के लिए राज़ी करना होगा। जब तक हम वजूद के साथ, क़ल्ब के साथ, मानवी अंदाज में इमाम ज़मा की आलमगीर इनकलाब के लिए ज़मीना साजी करने में कामयाब नहीं होते, तो याद रखना हम सैयदा भी राज़ी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इन तमाम हस्तियों का एक ही दिन के इंतजार में ये तमाम हस्तियां वो हजरत इमाम ज़मा के ज़हूर का दिन है। क्यों? क्योंकि इन सब ने जितने भी अज़ियतें सही है वो इसलिए क्या ताकि पूरी कायनात में इस्लाम का गलबा हो, और ये ख्वाब उस वक्त तक शर्मिंदा ताबिर नहीं हो सकता जब तक इमाम ज़मा का ज़हूर नहीं होगा। और ज़हूर के रास्ते में जो भी रुकावटें हैं वो शायद मैं और आपकी गलतियों की वजह से है, कोताहियों की वजह से। लिहाजा मैं यहाँ पर इस इज्तिमा में बैठे हुए तमाम जवानों से गुजारिश करूँगा, आइए आज हम तजदीद अहद करें कि हम डॉक्टर शहीद नहीं रहे, शहीद हुसैनी नहीं रहे, तो आज हम इनके पाकीज़ा रूह से ये तजदीद अहद करें कि पाकिस्तान की सरजमीन पर हम खत शहीद हुसैनी पर, खत शहीद डॉक्टर पर चलते हुए पाकिस्तान की सरजमीन पर इन नौजवानों को आलिमी नहज़त के साथ मुंतसिल करने के लिए, मिल्लत को यकजा और इंसजाम के लिए, इत्तेहाद और वहदत के लिए अपना किरदार अदा करे और पाकिस्तान की सरजमीन पर इस मिल्लत को ये शहादत और ये एजाज़ हासिल है कि हमने कभी भी किसी तागूत के सामने सर नहीं झुकाया। हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं, हम पाकिस्तान का दिफा करने वाले हैं, और हर वक्त हमने हजारों जनाजे उठाए हैं, लेकिन इस वतन के खिलाफ कोई साजिश नहीं की है। लिहाजा आज जवानों, आइए हम तजदीद अहद करें शहीद हुसैनी की पाकीज़ा रूह से, सैयदा ज़हरा से,
रहबर से कि हम ये तजदीद अहद करके यहाँ से वापस लौटे कि आज के बाद हमने अपने रहबर के हाज कासिम बनना है, अपने रहबर के शहीद डॉक्टर बनना है, शहीद हुसैनी बनना है। अगर हम आज सिर्फ उनके कसीदे और उनकी कहानियाँ पढ़ने पर इत्तेफाक करेंगे तो इससे हक अदा नहीं होगा। हमने पूरी वजूद के साथ पाकिस्तान की सरजमीन पर विलायत के लिए, विलायत के दिफा के लिए और पाकिस्तान में इस मकतबे अहले बैत को आलमी नहज़त से जोड़ने के लिए हमने अपना किरदार अदा करना होगा। और आलमी नहज़त से जुड़ने का एक मसाल क्या है? कैसे मुमकिन है कि दुनिया में जुल्म हो और पाकिस्तान में हम खामोश रहें? कैसे मुमकिन है कि कोयटा में मासूम बच्चे, बेटियां, माएँ, बेटे और बुजुर्ग लोग अपने बच्चों के जिनाजे लिए सड़कों पर -14 में बैठे और हम अपने मदरसों और घरों के अंदर महदूद रहे? नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। अगर हम वाकईन इस नहज़त इमाम ज़मां को समझना चाहते हैं, इसके साथ अपना मकतब को जोड़ना चाहते हैं, तो हमें इस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना होगा, सड़कों पर आना होगा, हमें इस जुल्म के खिलाफ सजाए एहतजाज बुलंद करना होगा। कैसे मुमकिन है फ़लस्तीन में जुल्म हो, यमन में जुल्म हो, नाइजीरिया में जुल्म हो, इराक में जुल्म हो और पाकिस्तान में हम खामोश बैठे? नहीं हो सकता। जिस तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि ये उम्मत एक जिस्म के मानंद है, जिस्म एक वाहिद जिस्म है। अगर जिस्म के किसी एज़ा पे जख्म लगे, कट लग जाए तो पूरा वजूद को दर्द महसूस होती है। लिहाजा हमने इस उम्मत वाहिदा के कंसेप्ट को लेते हुए अपने इत्तेहाद के जरिए से, अपने वहदत के जरिए से, अपने अंदर मौजूद तफरकों को ख़त्म करके एक बनकर अल्लाह जल के नारे बुलंद करने की ज़रूरत है। आखिर में एक बार फिर मैं मुबारकबाद पेश करूँगा जामे बेसत के मुंतज़मीन को कि हर साल इस खूबसूरत दिन को बड़े खूबसूरत अंदाज से मनाते हैं, बिलखुसूस वो दोस्त जो माहौल साजी करते हैं। वाक़ईन ब्रदर अजीज़, माहौल साजी भी इंसान के ऊपर बहुत सारे असरात मुरतब करते हैं और माशाल्लाह इनको वाक़ईन खराज तहसीन के मुस्तहिक है वो तालिब इल्म जो पाकिस्तान में जहाँ कहीं पे भी इस तरह के खूबसूरत इज्तिमात होते हैं। बिलखुसूस ISO पाकिस्तान के मरकज़ी प्रोग्रामात के ज़ीनत भी इसी मदारिस के बच्चे होते हैं। तो खुदाबंद मुताल इन जवानों की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए और इस मदरसे को, इस मदरसे के मुंतज़मीन को, उलमा को खुदा मज़ीद तौफ़ीक़ अता करके इस दरसगाह को मज़ीद वसअत अता करे और ये मिल्लत व मकतब की तरक्की और आबियारी के लिए अपना इसी अंदाज़ में किरदार अदा करते रहें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।